Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Okay, today we are going to start our next convention, that is Vienna Convention. In our last classes, in our last videos, we had already covered our Paris Convention, our Madrid Convention, our Stockholm Convention, and the last one is Bern Convention. Okay, if we are talking about all these convention one by one, they are protecting a particular type of intellectual property. Okay, Paris Convention protecting all the innovation relating to their industrial application. If any invention is having any industrial application, okay, then that is protected by the Paris Convention. In Bern Convention, we are talking about the protection of our trademark, okay, and sorry, copyright. And in Madrid Convention, we are talking about the protection of our trademark. Stockholm Convention is behind the origin of WIPO, World Intellectual Property Organization. Okay, today is Vienna Convention. Okay, कन्वेंशन हमने पढ़ लिया. कन्वेंशन क्या होता है? एक फॉर्मेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को. कॉन्ट्रैक्ट मींस ट्रीटी का जो मेन पर्पस है दैट इज इन कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट जो कंट्रीज जो है मिलकर कर रही है किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए. अब बर्न कन्वेंशन होगी, पेरिस कन्वेंशन होगी, जो ये कन्वेंशन हो रही है वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड वाइड जो कि कन्वेंशन एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनका फॉर्मेशन क्या रहेगा? What would be the standard? What would be the basics of formation of a convention, formation of a treaty, formation of a contract on international level? All these things are going to be discussed in Vienna Convention. Okay, so let's start with the introduction part. Treaty. What is treaty? Treaties are the principal source of international rights and obligations, and every state is a party to hundreds of treaties, bilateral and multilaterals. Okay, two types की treaties की यहाँ बात होगी, bilateral and multilaterals. 196 countries as present world में है. कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी ट्रीटी की, किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस की, किसी ना किसी कन्वेंशन की पार्ट है. Okay? Treaties regulate practically every aspect of state behavior in times of peace and in the time of war. Next, codification of law of treaty. Basic जो origin हुआ था treaty का, law of treaty का कहाँ से हुआ था? The Vienna Convention, that is also called the law of treaties. The law of treaties has been codified. The Vienna Convention on the law of treaties was signed at Vienna on 23rd of May 1969. 23rd of May 1969 में Vienna Convention साइन हुई थी. कहाँ पर? वियना. ठीक है. Entered into force on 27th of January 1980 after being ratified by 35 states. 27th of जनवरी 1980 को एनफोर्स हुई थी, इफेक्टिव हुई थी जब 35 कंट्रीज ने उसमें रेटिफाइड कर दिया था. आफ्टर दैट इन 1969 वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज अप्लाइज ओनली टू द ट्रीटीज कंक्लूडेड बाय स्टेट्स. मींस जब हम वियना कन्वेंशन की बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वियना कन्वेंशन, तो ये ट्रीटीज किस बारे में बात कर रही है? अगर दो स्टेट मिलकर, दो कंट्रीज मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई कन्वेंशन कर रहे हैं, कोई कन्वेंशन की सिग्नेचर कर रहे हैं, तो ट्रीटी उसी से रिलेटेड है. ओके, एंड एडिशनली ट्रीटी डीलिंग विद ट्रीटीज कंक्लूडिंग बिटवीन स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड इन वियना 1986. It has not yet entered into force. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो ट्रीटी है वो 1986 में वियना में हुई थी, बट अभी वो लॉ में चेंज नहीं हुआ है. मतलब इट हैज नॉट येट एंटर्ड इनटू फोर्स. जो ट्रीटी हुई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड 1986 में, वो अभी फोर्स में नहीं आई है, एनफोर्समेंट उसका नहीं हुआ है. वो ट्रीटी एक अलग थी वियना कन्वेंशन की. ठीक है, जब हम वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी की बात करें तो हम उस ट्रीटी की बात करें जो बिटवीन टू एंड मोर देन टू स्टेट्स के बीच में होती है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसमें इंक्लूड नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट ट्रीटी.
treaty is formally concluded and ratify agreement between states. Means its treaty is an agreement, between state, between countries. The term is used generally to refer to instrument binding at international law concluding between international entities. Okay. The 1969 वियना कन्वेंशन डिफाइंड अ ट्रीटी. इसमें डेफिनेशन दी हुई है आपका वियना कन्वेंशन में. किसकी डेफिनेशन? ट्रीटी की. एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments, and whatever its particular designation. Okay. Now next, element of a treaty. Elements. जब we are going to form a treaty, we are going to sign up an agreement या contract. ठीक है. तो एलिमेंट्स कौन कौन सी चीजें, एक जब ट्रीटी बन रही है, जब 2 and more than 2 स्टेट्स मिलकर कोई ट्रीटी बना रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होने चाहिए? फर्स्ट वन, इट शुड बी राइटिंग अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटी 1969. वियना कन्वेंशन में प्रॉपर स्टेप दिए हुए हैं किस चीज के? फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी के. कि कोई भी ट्रीटी अगर इंटरनेशनल लेवल पर बिटवीन स्टेट्स बन रही है तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे. तो जो भी ट्रीटी इंटरनेशनल लेवल पर बन रही है, फर्स्ट वन, इट शुड बी इन रिटन फॉर्म, वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए. एंड सेकंड वन इज इट शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू द वियना कन्वेंशन. ओके. एंड आफ्टर दैट पार्ट टू ट्रीटी मे बी स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ओके. पार्ट टू द ट्रीटी, ट्रीटी में जो पार्टिसिपेट ले रहे हैं, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है, दैट माइट बी अ स्टेट. ओके. दैट माइट बी एन इंटरनेशनल organization. But when we are talking to a particular Vienna Convention, we are talking to the state, talking to the agreement between the state. Okay. Purpose of treaty is to create relationship between the parties. Okay. Basic जो purpose होता है किसी भी treaty को create करने का, okay, वो क्या होता है? It may be a legal, political or moral. जब कोई agreement international level पे sign हो रहा है between the countries, between 2 countries and more than 2 countries, जो उनका पर्पस है उसके पीछे या तो वो लीगल पर्पस होना चाहिए या कोई मॉरल और या कोई पॉलिटिकल पर्पस होना चाहिए ट्रीटी को बनाने का. आफ्टर दैट इट शुड बी विद इन स्फीयर. स्फीयर मींस डोमेन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ओके. आफ्टर दैट डिफरेंट नेम्स ऑफ ट्रीटी. ट्रीटी के डिफरेंट नेम क्या है? फर्स्ट वन, कन्वेंशन, एग्रीमेंट. हर जगह अगर आप कहीं कहीं पढ़ेंगे तो आपको कन्वेंशन लिखा होगा, एग्रीमेंट आप कहीं पढ़ेंगे, प्रोटोकॉल, कॉन्ट्रैक्ट, इंस्ट्रूमेंट, ऑल दीज आर डिफाइंड अंडर ट्रीटीज. ऑप्शनल क्लॉज आल्सो. नाउ कम टू द पॉइंट. टाइप्स ऑफ ट्रीटी. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रीटी. फर्स्ट वन इज bilateral, second one is plurilateral, and third one is multilateral. Okay, let's discuss all this one by one. First one is bilateral treaty. Treaties in which participation and right is limited to 2 parties, also called bipartite treaties and treaty contracts. जब 2 स्टेट्स मिलकर, 2 कंट्रीज मिलकर किसी एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, दैट इज नोन एज बायलैटरल ट्रीटी. ओके. एग्जांपल, द यूरोपियन यूनियन एंड जापान रिसेंटली साइंड अ ट्रेड डील दैट विल रिड्यूस टैरिफ ऑन मोस्ट ट्रेडेड गुड्स. रिसेंटली एक ट्रीटी साइन हुई है बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड जापान में रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग ट्रेड डील. ओके. मतलब जो टैरिफ है, जो टैरिफ लग रहा है उसको कम करने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो भी उनके मोस्ट ट्रेडेड गुड्स है. किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ है? यूरोपियन यूनियन एंड जापान के. इसमें 2 कंट्रीज जो है वो पार्ट ले रही है, 2 स्टेट्स में पार्ट ले रहे हैं. दैट व्हाई इट कम्स अंडर बायलैटरल ट्रीटी. आफ्टर दैट प्लूरिलैटरल ट्रीटी. ट्रीटीज इन विच पार्टिसिपेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट. प्लूरिलैटरल में सारी की सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. इट रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ
कंट्रीज, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स जो है उसका मेंबर बन सकते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ पार्टीज इन सच ट्रीटी शुड बी मोर देन 2. ओके, अगर 2 पार्टीज की हम बात करें, 2 अगर स्टेट्स मिलकर कोई ट्रीटी बना रहे हैं तो हमारी बायलैटरल में आ जाएगी. मोर देन 2 बट द नंबर इज लिमिटेड. ओके, restricted to a limited number of state. Purpose is to maintain peace, security or to promote develop commerce. जो main purpose होता है plurilateral treaties का वो maintain peace, security purpose होता है and to promote develop commerce. After that, example जैसे information technology agreement है, वो भी एक treaty है. किसके अंदर आ रही है वो आपका plurilateral. More than 2 countries but the number are limited, restricted. Okay, next one, anti-counterfeiting trade agreement and UN also included under this category. Means अगर हम UN की बात करें, UN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो ट्रीटी है वो वियना कन्वेंशन के अंदर नहीं आ रही है, बट दैट इज अ प्लूरिलेटरल ट्रीटी. After that, last one is multilateral treaty. Those which are open to participation for all the states without restrictions to number of parties. Okay. When we had talk about Bern Convention, Paris Convention, उसमें क्या था, जो उसके पार्टिसिपेंट है, नंबर ऑफ कंट्रीज जो उसकी मेंबर है दैट इज अनलिमिटेड. कोई भी कंट्री उसकी मेंबर बन सकती है, तो दैट इज कम्स अंडर मल्टीलेटरल ट्रीटी. ओके, दीज ट्रीटीज आर मोस्ट प्रोमिसिंग मेथड for the development of international law and also called the law making treaties. Okay, किसी भी कंट्री पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है. ठीक है, कोई भी कंट्री उस ट्रीटी की मेंबर बन सकती है, उस कन्वेंशन की मेंबर बन सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन सकती है, उस एग्रीमेंट का पार्ट बन सकती है. तो किसमें आएगी आपकी मल्टीलेटरल ट्रीटी. आफ्टर दैट, हु कैन बी पार्टीज टू द ट्रीटी. हमने टाइप्स ऑफ ट्रीटी पढ़ा, मल्टीलेटरल, बाइलेटरल, प्लूरिलेटरल. आज पर वियना कन्वेंशन कौन कौन से स्टेट्स, कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर बन सकते हैं कन्वेंशन की, किसकी ट्रीटी की. ओके, फर्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 6 ऑफ वियना कन्वेंशन, एवरी स्टेट पोजेसेस कैपेसिटी टू कंक्लूड ट्रीटी. हर स्टेट कैपेबल है किसके लिए, ट्रीटी कंक्लूड करने के लिए. नेक्स्ट वन, only a state cannot enter into treaty if it is bound by obligation of treaty with other state. Means अगर सपोज कीजिए मैंने किसी एक कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है और उस एग्रीमेंट में इट इज मेंशन्ड दैट मैं बाउंडेड हूं, मैं किसी थर्ड ट्रीटी को या थर्ड कंट्री के साथ कोई भी ट्रीटी, कोई भी डील, कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकती. ओके, सो आई एम बाउंडेड बाय द फर्स्ट एग्रीमेंट. तो उस टाइम में, उस सिचुएशन में कोई भी स्टेट दूसरी ट्रीटी का पार्ट नहीं बन सकता. ओके, वियना कन्वेंशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रीएम्बल एंड 85 आर्टिकल्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट. When we are talking about Vienna Convention, इसमें 85 आर्टिकल्स है and which is divided into 8 parts. Now, this is the most important part of the Vienna Convention, that is formation of treaty. If two and more than 2 states are going to form a treaty, what should be the base? What should be the standard to form a treaty? Okay. So, in this formation of treaty, we are going to discuss this. First one is accrediting of person by contracting state. Appointment of representative. First one is accrediting of person by the contracting state. जो भी स्टेट है, जो भी किसी एग्रीमेंट का पार्ट बनने जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंट अपॉइंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं अपने बिहाफ पे. Okay, he should have the authority to conclude treaty. और उसको पूरी की पूरी अथॉरिटी देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पर जाकर, हमारी कंट्री के बिहाफ पर जाकर ट्रीटी को क्या करे, कंक्लूड करे. एंड फुल पावर गिवन बाय द स्टेट हेड और द फॉरेन मिनिस्टर. वो जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको फुल पावर्स प्रोवाइड की जाती हैं, किसके थ्रू, जो हेड है स्टेट्स का उसके थ्रू एंड द फॉरेन मिनिस्टर्स. आफ्टर दैट,
Article 2 of Vienna Convention lays down that full power meaning a document emanating from competent authority of a state designating a person or person to represent the state for negotiating, for adopting or for authenticating the text of the treaty. Means जब हम किसकी बात कर रहे हैं, yes, we are talking about the full power given by the state head. अब full power का मतलब क्या है? full power के अंदर क्या क्या आता है? जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जो उस कन्वेंशन में पार्ट लेने जा रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ अवर स्टेट, ऑन द बिहाफ ऑफ अवर कंट्री, ओके, उसके बाद कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं किस चीज के? नेगोशिएटिंग के। वो नेगोशिएट कर सकता है, कंट्री के बिहाफ से अडॉप्ट कर सकता है और ऑथेंटिकेट कर सकता है जो भी हमारा टेक्स्ट है इस चीज का, उस पर्टिकुलर ट्रीटी का। आफ्टर दैट स्टेप सेकंड, नेगोशिएशन। ड्यूरिंग द नेगोशिएशन दे मे कंसल्ट देयर स्टेट। नेगोशिएशन में क्या होता है? सपोज कीजिए आप कोई ट्रीटी बना रहे हो, कोई एग्रीमेंट है, किसी एग्रीमेंट पे आपको साइन करने, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको अडॉप्ट करना है, उसके लिए क्या होता है? अब उसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्या क्या उसके स्टैंडर्ड्स होंगे उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के। तो नेगोशिएशन में क्या करते हैं? आप डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए कोई एग्रीमेंट है जिसको 15 कंट्रीज जो है वो साइन करने वाली है। उसके बाद जब एग्रीमेंट अभी क्या है, बनने की प्रोसेस पे अभी तैयार नहीं हुआ एग्रीमेंट, तो जो 15 कंट्रीज हैं, स्टेट्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठ के डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रीटी, पर्टिकुलर एग्रीमेंट, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो नेगोशिएशन में क्या होता है? ड्यूरिंग द नेगोशिएशन दे मे कंसल्ट देयर स्टेट्स। जो रिप्रेजेंटेटिव है, इफ ही और शी आर हैविंग एनी डाउट, दे कैन कंसल्ट टू देयर स्टेट आल्सो, दे कैन कंसल्ट टू देयर स्टेट हेड। अपने स्टेट हेड से कंसल्ट कर सकते हैं नेगोशिएटिंग राउंड में। After that, third one is adoption. Adoption में क्या है? To settle its form and content by drawing up text. In multilateral treaty, consent of state is needed for drawing up text. Negotiation हुआ, आपका discussion हुआ, क्या क्या rules regulations होने चाहिए। उसके बाद जो 15 states जो हमने एग्जाम्पल लिया था, 15 के 15 states क्या हो गए? एग्री हो गए रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। ओके, बट जो अडॉप्शन हुआ है वो सारे का सारा टेक्स्ट शुड बी इन रिटन फॉर्म होना चाहिए। एंड आर्टिकल 9 क्लोज 2 ऑफ वियना कन्वेंशन स्टेट दैट adoption of text of a treaty at an international conference take place by vote of 2/3 of the state. 2/3 of state means किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंट्रीज जो है उसकी मेंबर कंट्रीज जो भी बनने जा रही है इसकी मेंबर कंट्रीज, उनमें से 2/3 स्टेट्स की अगर वोटिंग होगी, अगर 2/3 स्टेट्स वोटिंग के थ्रू उस एग्रीमेंट को ओके करेंगे तभी वो अडॉप्शन में कंसीडर होगा। नहीं तो क्या होगा? अगर 2/3 स्टेट्स ने उनको ओके नहीं किया, उस एग्रीमेंट को ओके नहीं किया, फिर दोबारा उसमें क्या होंगे? चेंजेस होंगे, रूल्स रेगुलेशंस में क्या होंगे? चेंजेस होंगे। आफ्टर दैट, सिग्नेचर्स बाय द एक्रीडेटेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। इसमें क्या है? फर्स्ट वन क्या है आपका? एग्रीडेटिंग ऑफ पर्सन बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। आफ्टर दैट नेगोशिएशन हो गया आपका, उसके बाद आपका एडॉप्शन हो गया। एडॉप्शन मींस सब कंट्रीज क्या है? एग्री हो गई हैं ऑन द टेक्स्ट ऑफ द ट्रीटी। आफ्टर दैट सिग्नेचर बाय द एक्रीडेटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। जो भी रिप्रेजेंटेटिव किसी पर्टिकुलर स्टेट ने अपॉइंट किया है, एलोकेट किया है, वो क्या कर रहे हैं? सिग्नेचर करेगा उस टेक्स्ट ऑफ ट्रीटी पे। द टेक्स्ट ऑफ ट्रीटी इज रिगार्डेड एज ऑथेंटिक एंड डिफाइंड बाय द सिग्नेचर। ठीक है, वो टेक्स्ट ऑफ ट्रीटी तभी वैलिड होगी जब उस पर सिग्नेचर होंगे किसके? रिप्रेजेंटेटिव के। इट शुड बी डन एट द सेम प्लेस एंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। सेम प्लेस, जब वो कन्वेंशन हो रही है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब वो एग्रीमेंट हो रहा है, अगर किसी एग्रीमेंट में 15 कंट्रीज है, 15 स्टेट्स हैं जो उसके मेंबर बनने वाले हैं, तो सबके जो सिग्नेचर्स हैं वो क्या होंगे? एक ही टाइम पे, एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस। एंड नेक्स्ट वन इज where provision are made for ratification of a treaty, it cannot
come into force only by signature provision of ratification. ठीक है, रेटिफिकेशन का प्रोविजन क्या होता है? जो कंट्री है या स्टेट है, स्टेट ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को सारे के सारे पावर्स दे दिए, आप नेगोशिएट करो हमारे बिहाफ पे, आप अडॉप्ट करो किसी भी पर्टिकुलर ट्रीटी को, कॉन्ट्रैक्ट को हमारे बिहाफ पे। बट रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? रेटिफिकेशन में जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपने स्टेट हेड या अपनी पार्लियामेंट में जाकर डिस्कस करेगा कि मुझे क्या वो एग्रीमेंट, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ट्रीटी ऐसी है जहां पर प्रोविजन आर मोड फॉर रेटिफिकेशन, जहां पर रेटिफिकेशन का प्रोविजन है, तो सिर्फ वो ट्रीटी सिग्नेचर से ही क्या होते हैं, इंप्लीमेंटेशन में नहीं आ जाती। रेटिफिकेशन का पूरा प्रोसीजर है, पूरा का पूरा प्रोसेस है, उसको खत्म करने के बाद ही जो ट्रीटी है वो बाइंड अप होती है और वो एनफोर्समेंट में आती है। यस, now come to the point, ratification. When a treaty is signed by representative of state and confirmed by state, the act of confirmation is called ratification. Okay, as we told that when a treaty is signed by the representative ने treaty क्या है, sign कर दिया है and confirmed by the state, और जो state है, state का जो head है, जो भी उनकी मिनिस्ट्री है, उन्होंने अगर confirm कर दिया, that is the process of ratification. Article 2, Clause 1 of Vienna Convention. Ratification is an international act whereby a state gives consent to be bounded by a treaty. Ratification में क्या है? एक international act है जिसमें state क्या कर रहा है? State अपनी consent दे रहा है that I am going to bound by a treaty. Ratification is done only in those cases where it is required by provision of the treaty. As we discussed earlier, ratification तभी होता है, तभी that is if that is mentioned in the provision of the treaty. अगर provision में mention नहीं है तो ratification नहीं होगा. After that, purpose of ratification. Purpose of ratification में it gives an opportunity to contracting state to re-examine and review the treaty signed by their representative. रेटिफिकेशन का जो बेसिक पर्पस है वो यही है कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किस चीज को, स्टेट हेड को, किस चीज के लिए, री एग्जामिन जो भी ट्रीटी, जो भी एग्रीमेंट, जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा रिप्रेजेंटेटिव साइन करने जा रहा है, जो हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं, ओके, उसको री एग्जामिन करना, उसको रिव्यू करना, ओके, साइन बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव. A state may require to amend its own law in order to give effect to provision of treaty. ठीक, सपोज कीजिए हम इंटरनेशनल लेवल पर कोई ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो ट्रीटी है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है वो सिग्नेचर करने जा रहे हैं, साइन करने जा रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव साइन करने जा रहे हैं, कर रहे हैं. नोटिफिकेशन में क्या होगा, अगर उसको कोई डाउट है और या जो हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेडमार्क से रिलेटेड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने जा रहे हैं, वो रूल्स रेगुलेशन अलग है किससे, जो हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में क्या है, रूल्स रेगुलेशंस है, लॉ है रिगार्डिंग टू ट्रेडमार्क. ओके, तो जब हम रेटिफिकेशन की बात करते हैं तो रेटिफिकेशन में हमें, अगर हमारे होम स्टेट में, अगर हमारे स्टेट में कोई हमें चेंजेस करने हैं लॉ में, ठीक है, तो वो भी हमें क्या कहते हैं, टाइम मिल जाता है रेटिफिकेशन में कि हम अपने जो विद इन हमारी कंट्री जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस और लॉज है उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. ओके, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक setup that the government should consult public opinion either in parliament or elsewhere as to whether a particular treaty should be confirmed or not. If you are talking about a democratic country, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, पब्लिक से ओपिनियन लिया जाता है, पार्लियामेंट में कंसल्ट किया जाता है कि हम ये एग्रीमेंट, ये ट्रीटी, क्योंकि देखिए अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा फुल फ्लैश इम्पैक्ट जो है वो किस पे पड़ेगा, स्टेट पे पड़ेगा, वहां के रेजिडेंट पे पड़ेगा, वहां के लोगों पे पड़ेगा. तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट इन अवर पार्लियामेंट, तो हमें क्या मिल जाता है, लोगों की कंसेंट मिल जाती है कि whether we should
adopt that particular treaty or not. Now, mode of ratification, it is an internal process which is different from state to state. Okay, mode of ratification क्या है? State to state आपका different करता है. In some state, treaty must be ratified by the president with the advice and consent of the Senate. कुछ countries ऐसी हैं जहाँ पर जो ratification है वो president के through होता है by the consent of their Senate member. Okay, कुछ ऐसी countries हैं जहाँ पर parliament में discussion होता है, उसके बाद ratification का process होता है. After that, 2/3 of the Senate should be present. Then we are discussing about the ratification of a treaty. उस टाइम में 2/3 पर्सन जो सीनेट के मेंबर है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, इन सम स्टेट ट्रीटी मस्ट बी रेटिफाइड बाय प्रेसिडेंट with the advice and consent of the Senate. At that time, 2/3 of the Senate members should be present. Now, according to Vienna Convention, in between the period of signature and ratification, okay, signature कर दिया हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे स्टेट का था, ट्रीटी साइन करने गया, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए कहीं पर, उन्होंने क्या किया, साइन कर दिए. एंड उसके बाद क्या है, प्रोविजन है वहां पे रेटिफिकेशन का. मीन्स आपको अपने स्टेट हेड से या मिनिस्टर से कंसल्ट करना है रेटिफिकेशन के लिए. तो जो सिग्नेचर और रेटिफिकेशन का प्रोसेस, मीन सिग्नेचर तो हो गए, हमने क्या किया, अभी उसको फुली क्या किया, अडॉप्ट नहीं किया उस ट्रीटी को. अभी रेटिफिकेशन के बाद हमारा पूरा का पूरा 100% कंसर्न जाएगा उस ट्रीटी को, उस कॉन्ट्रैक्ट उस एग्रीमेंट को अडॉप्ट करने का. तो उसके बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें क्या है, इन बिटवीन द पीरियड ऑफ सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन अ स्टेट इज अंडर अ ड्यूटी नॉट टू डू एनी एक्ट which is likely to defeat the object and purpose of treaty until it shall made clear by the state not to ratify the treaty. Means अगर signature and ratify के बीच का अगर टाइम पीरियड है जो भी है, तो सारे के सारे जो स्टेट है जो अभी रेटिफिकेशन के प्रोसेस में, वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं किस चीज से, ट्रीटी के रूल्स रेगुलेशन से, कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो पर्पस ऑफ ट्रीटी को क्या करे, डिफीट करे. टिल आप क्लियर नहीं कर देते, आप रेटिफाई नहीं कर देते दैट यू आर गोइंग टू बी अ मेंबर ऑफ दैट ट्रीटी और नॉट. आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ द ट्रीटी, रेटिफिकेशन हमने कर लिया, accession and reaction. A traditional method by which a state become a party to a treaty in which it is not a signatory member. ठीक है, सिग्नेचरी मेंबर क्या होता है, सपोज कीजिए कोई एग्रीमेंट है, एट द टाइम ऑफ जब वो एग्रीमेंट साइन हो रहा है, बन रहा है, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट, जो उस टाइम पे जो कंट्री साइन कर रही है, दैट इज द सिग्नेचरी मेंबर ऑफ दैट एग्रीमेंट. उसके बाद कोई ऐसी कंट्री जो बाद में उसको एनालाइज होता है कि नहीं, मुझे तो उस एग्रीमेंट का पार्ट बनना है, ओके, तो वो आएगा आपका एक्सेशन में. ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ट्रीटी, द ट्रेडिशनल मेथड बाय व्हिच अ स्टेट बिकम अ पार्टी टू अ ट्रीटी ऑफ व्हिच इट इज नॉट अ सिग्नेटरी. एक्सेशन क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है किसी भी ट्रीटी का, किसी भी एग्रीमेंट का पार्ट बनने के लिए, अगर आप उसके सिग्नेटरी मेंबर नहीं है. राइट टू एसेट इज डिटरमिन्ड बाय प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी, and if no provision is provided, a state may assign by consent of all the state. Means अगर किसी थर्ड कंट्री, थर्ड स्टेट को हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट, हमें एग्रीमेंट का क्या बनाना है, पार्ट बनाना है, तो उसके लिए जो भी प्रोविजन होंगे वो हमारे ऑलरेडी किसमें मेंशन होंगे, ट्रीटी में मेंशन होंगे. When a state becomes party through accession, ratification is not required. अगर कोई स्टेट किसी भी एग्रीमेंट का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो पार्ट है, जो मेंबर है, वो किसके थ्रू बन रहा है, एक्सेशन के थ्रू बन रहा है, उस टाइम में रेटिफिकेशन मींस टू कंसल्ट टू देयर स्टेट हेड, टू कंसल्ट इन देयर पार्लियामेंट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, नाउ एंट्री इनटू फोर्स. कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब फोर्स में आएगा, कब वो एनफोर्स होगा. ओके, Article 24 of Vienna Convention
state that a treaty comes into force as soon as consent is obtained by all negotiating states. जो भी स्टेट नेगोशिएटिंग स्टेट्स है, सिग्नेचरी स्टेट्स है, ओके, जो भी मिलकर वो एग्रीमेंट, जो वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, जब सबके जैसे कंसेंट आ जाएगी, सब विलिंग है, ठीक है, सबने ओके कर दिया, तब वो ट्रीटी क्या हो जाएगी, एनफोर्स में आ जाएगी, एंट्री इनटू फोर्स हो जाएगी. Multilateral treaties come into force from the date when the prescribed number of ratification or accession has been made. When we are talking about multilateral treaties, एक नंबर फिक्स है रेटिफिकेशन का कि इतने स्टेट जो है वो इस ट्रीटी के मेंबर बनेंगे तभी ये ट्रीटी फोर्स में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी. एक लिमिटेड नंबर जो उन्होंने फिक्स किए हुए हैं, ठीक है, जितने भी उन्होंने फिक्स किए हुए हैं लिमिटेड नंबर्स, अगर उतने स्टेट्स ने सिग्नेचर्स कर दिए, रेटिफिकेशन कर दिया है, ठीक है, और असेशन कर दिया, या तो वो क्या हुए सिग्नेचरी मेंबर है, या फिर उन्होंने असेशन किया है, असेशन के थ्रू क्या बने, उसके एग्रीमेंट के, उस कॉन्ट्रैक्ट के, उस ट्रीटी के क्या बने, पार्ट बने हैं, तब वो ट्रीटी क्या आ जाएगी, एनफोर्समेंट में आ जाएगी. सपोज कीजिए कोई एग्रीमेंट साइन किया है और उसमें मेंशन है कि अगर 20 स्टेट्स, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीलेटरल ट्रीटी, ओके, 20 या 40, 50 कंट्रीज इसकी मेंबर बनेंगी तभी ये एंट्री इनटू फोर्स आएगा, अदरवाइज ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, ठीक है. The treaty may also enters into force provisionally according to the Article 25 of the Vienna Convention. Okay, कोई ऐसी ट्रीटी जिसका जरूरी है अभी से क्या होना, इम्प्लीमेंटेशन में आना, अभी से एंट्री इनटू फोर्स, तो एज पर वियना कन्वेंशन उस ट्रीटी को प्रोविजनली क्या कर सकते हैं, एंटर इनटू फोर्स हम कर सकते हैं. नाउ स्टेप 8, रजिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन. According to the Article 102 of the Charter of UN, treaty is required to be registered with Secretary General of UN after it has come into force. Article 80, Clause 1 of Vienna Convention provides the same principle as above. Article 80 Vienna Convention का बता रहे कि कोई भी ट्रीटी, कोई भी एग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल पर जो भी स्टेट्स मिलकर क्या कर रहे हैं, सिग्नेचर कर रहे हैं, जो भी ट्रीटी बना रहे हैं, उसको यूएन में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, मैंडेटरी है. सेम चीज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट यूएन चार्टर, वहां पे भी आर्टिकल 102 में सेम चीज मेंशन है जो हमारी वियना कन्वेंशन में मेंशन है कि उसको यूएन के थ्रू क्या होना, रजिस्टर होना जरूरी है, तभी कोई कंट्री या कोई ट्रीटी क्या आएगी, एनफोर्समेंट में आ सकती है. जैसे ही कोई ट्रीटी एनफोर्स हुई, उसी को तभी के तभी उसको यूएन में क्या कराना है, रजिस्टर कराना है. अब पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या पर्पस है रजिस्ट्रेशन का, टू प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम कंक्लूडिंग सीक्रेट्स एग्रीमेंट. सारी की सारी ट्रीटी को मैंडेटरी है यूएन के में रजिस्टर कराना, जब वो ट्रीटी जो है वो फोर्स में आ गई है. अब उसके पीछे पर्पस क्या है, क्यों हम अपनी ट्रीटी को यूएन में रजिस्टर कराएं. फर्स्ट वन इज टू प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम कंक्लूडिंग सीक्रेट्स एग्रीमेंट, ताकि कोई भी स्टेट्स, दो से ज्यादा स्टेट्स मिलकर कोई भी सीक्रेट्स एग्रीमेंट ना कर पाए. इसलिए अगर यूएन के में वो जो ट्रीटी है वो रजिस्टर्ड होगी तो यूएन को पता होगा कि हाँ ये जो ट्रीटी है इसका बेसिक पर्पस क्या है. इसका बेसिक पर्पस पॉलिटिकल है, लीगल है, मॉरल है. What would be the basic purpose of that treaty? And non-registration does not make treaty invalid, but no state can claim anything before UN if treaty is not registered. Non-registration does not make the treaty invalid. Means अगर आपने अपनी treaty को अपने जो भी आपने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, अगर यूएन में रजिस्टर नहीं कराया तो आपकी जो ट्रीटी है वो इनवैलिड नहीं होगी. बट you cannot claim or a state cannot claim anything before UN.
यूनाइटेड नेशन के सामने सपोज कीजिए 10 कंट्रीज ने मिलकर कोई ट्रीटी बनाई, उसमें से एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रीटी उस ट्रीटी के रूल्स रेगुलेशंस जो बेसिक स्टैंडर्ड्स थे वो अलग थे, बट जैसे जैसे फर्दर वो ट्रीटी अपना काम कर रही है वो अपने रूल्स रेगुलेशन जो उसने स्टैंडर्ड बनाया था उसको फॉलो नहीं कर रही है। अब 10 स्टेट से मिलकर एक ट्रीटी बनाई थी, उसमें से एक स्टेट है जो ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है, तो वो यूएन में ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता क्योंकि जो ट्रीटी है वो रजिस्टर्ड नहीं है। सो दिस इज द बेसिक पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रीटी। ओके, यस, सो once again we will recall the formation of the points including the formation of the treaty. First one is aggregating of person by the contracting states. Next one is negotiating between the states. After that, adoption, signature by accredited representative of the state, ratification, and sixth one is accession. Seventh step is entry into force, and last one is yours registration and publication. Okay, hope so आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ एनी क्वेरी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप पूछ सकते हैं। and this is all about today's videos Vienna Convention. In our next video we will going to discuss about patent. What is patent? ओके, जो हमने वीडियोस लास्ट हमने वीडियो किसी पेटेंट के रिगार्डिंग वो हमने बहुत शॉर्ट में की थी कि व्हाट इज पेटेंट। ओके, इन आवर कमिंग वीडियोस, इन आवर कमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज पेटेंट एंड व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, टाइप्स ऑफ पेटेंट, एवरीथिंग, एंड पेटेंट एक्ट इन इंडिया। ओके, थैंक यू।